my dear students. How are you all? I hope you are well, fine, good and healthy. Okay, my dear students, in our today's class we are going to start a new lesson, a new chapter. Which chapter do you know? Okay, let me tell you. We are going to start chapter number 2. Okay, and what is the name of the chapter? I will tell you. See, the name of the chapter is The Festival of Dolls. What is the name of the chapter? The name of the chapter is The Festival of Dolls. Now tell me one thing, my dear students, what do you mean by dolls? I know most of you like dolls. Doll means small soft toys. डॉल क्या होती है? डॉल एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया होती है. सी लाइक दिस, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया होती है. Many girls play with dolls, right? So in this chapter we are going to see the festival of doll. Festival, doll festival. Have you listened? So you have not listened, na? Dolls festival. So we will see the festival of dolls, okay, in this chapter. So without wasting much of our time, come we will start. Before starting the lesson, let me tell you one thing, my dear students. When I will read the chapter, you will keep your finger on the line. This will help you to know that where I am reading. Okay, got it? Is that clear? So come we will start our today's chapter. Okay, my dear students. Now see your page number 11, chapter number 2. What is the name of the chapter? The name of the chapter is The Festival of Dolls. Okay, before starting the lesson, let me tell you, please take your pencil in your hand. अपनी pencil अपने हाथ में लिखो. Why? Because we will underline the hard words. Okay? So, we will start the lesson. Okay? In India, we celebrate different types of festivals like Holi, Diwali, Christmas, Eid, Baisakhi and many more. People all over the world have different customs and they celebrate different festivals. As you know, my dear students, in India, we celebrate many festivals. Which festivals we celebrate? See. We celebrate होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बैसाखी. इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना. सो इन द वर्ल्ड वी हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल. डिफरेंट कस्टम्स मीन्स पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके के रीति रिवाज है. ओके, पूरी वर्ल्ड में अलग अलग तरह की रीति रिवाज है. कोई अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, कोई अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है. ओके, सो कम वी विल सी नाउ नेक्स्ट. जापान इज अ स्मॉल कंट्री इन द फार ईस्ट. द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड जापानीज. लाइक us, the Japanese also celebrate many festivals. Now we are going to see the which country? We will see the country of जापान. ओके, जापान इज अ स्मॉल कंट्री इन फार ईस्ट. जापान कहाँ है? हमारे ईस्टर्न साइड में है और वो बहुत ही स्मॉल कंट्री है. द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड जापानीज. जापान के जो पीपल है उन्हें क्या बुलाते हैं हम लोग? जापानीज बुलाते हैं. लाइक जापानीज, लाइक इंडियंस, जापानीज ऑल्सो सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स. मतलब इंडिया की तरह जापान के लोग भी बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. वन ऑफ द जापानीज फेस्टिवल इज हिना मस्तूरी or doll festival. Now one of the Japan's festival is Hina Masturi. Hina Masturi means what? Hina Masturi means doll festival. Hina Masturi का मतलब यह है कि doll का festival है. Okay? This festival is celebrated on 3rd March every year. On which day this festival is celebrated? On 3rd March. Japanese make a special showcase to display their dolls on this day. The showcase is beautifully decorated and covered with red cloth. Now what these Japanese are doing? Japanese लोग क्या कर रहे हैं? एक showcase means एक बॉक्स रहता है टेबल टाइप, उसको शोकेस बोलते. और उस शोकेस में अपनी डॉल्स को रखते. सी, ये है ना बॉक्स, उस पे वो क्या करते? अपने डॉल्स को रखते. क्यों रखते? दिखाने के लिए.
कौन से डे पे रखते? डॉल फेस्टिवल के दिन पे रखते। ओके, दे ब्यूटिफुली डेकोरेट एंड कवर्ड विद द रेड क्लॉथ, मतलब अपने अपने डॉल्स को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करते, मतलब सजाते हैं और रेड कपड़ा टेबल के ऊपर बिछा के अपने अपने डॉल्स को रेड कपड़े के टेबल के ऊपर रख देते हैं। द डॉल्स डिस्प्लेड हियर आर नॉट द ऑर्डिनरी वंस, देयर इज एन एम्परर, एन एम्परेस एंड सम मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अब इसमें क्या बताया है, जो डॉल्स रखे जाते हैं वो सिंपल या नॉर्मल डॉल्स नहीं रहती है, उसमें एम्परर और बहुत ही सम मेंबर्स इन द कोर्ट, मतलब एम्परर्स मतलब इसमें राजा रानी और कोर्ट के बहुत सारे दूसरे लोग भी रहते हैं। ओके, म्यूजिशियंस, गार्ड एंड ऑफिशियल्स आर ऑल्सो देयर। All these dolls are dressed up in beautiful clothes। अभी राजा रानी और अदर मेंबर्स के साथ कौन कौन है? म्यूजिशियन, गार्ड्स एंड ऑफिशियल्स। म्यूजिशियन, गार्ड्स भी है साथ में। The dolls are kept in different shelves according to their rank। रैंक मीन्स डॉल टेबल के ऊपर अलग अलग सेल्फ बनाया हुआ है। देखो ये अलग अलग सेल्फ है ना, तो ये अलग अलग सेल्फ पे अलग अलग डॉल्स को अच्छी से डेकोरेट करके वो लोग रख देते हैं। ओके, नाउ हियर इन द प्लेस ऑफ ऑनर द एम्परर एंड द एम्परर्स आर केप्ट, मतलब इन द प्लेस ऑफ ऑनर मतलब क्या बोलते हैं, किंग और क्वीन को, मतलब राजा और रानी को अपन क्या करते हैं, वहाँ उनके लोग क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसलिए राजा और रानी को सबसे ऊपर में बिठाते हैं। बिलो देम स्टैंड द अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, मतलब राजा और रानी के नीचे कोर्ट के अदर मेंबर्स खड़े रहते हैं। कोर्ट के, रॉयल कोर्ट के अदर मेंबर्स मतलब अलग अलग लोग खड़े रहते हैं। फर्स्ट देयर आर 3 लेडीज इन वेटिंग, तो राजा रानी के बाद 3 लेडीज रहती है वेटिंग में। सी 1 2 3, 3 लेडीज कहाँ रहती है? वेटिंग में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टर्न द पेज। Then there are 5 musicians, 2 officials and 3 guards। अब वहाँ कौन है? 5 musicians है, 2 officials है और 3 guards है। The dolls are always arranged in a certain way, मतलब डॉल्स को वो लोग ऐसे अरेंज करते हैं बहुत ही ज़्यादा सर्टन वे में। सर्टन वे में मतलब जैसे वो रियल लगे। कौन रियल लगे? डॉल्स। यूजुअली द मदर डज दिस फॉर हर डॉटर्स। नाउ घर में ये काम कौन करता है? मम्मी करती है। किसके लिए करती है? अपने डॉटर के लिए। डॉटर मतलब बेटी। क्या काम करती है मम्मी? कि सारे डॉल्स को उनके अरेंजमेंट के थ्रू उनको अरेंज करके रखती है। जैसे पहले किंग, क्वीन, फिर बाद में अदर मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, है ना, वैसे ही। सम प्लेस स्मॉल पीसेस फॉर फर्नीचर, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेकोरेटेड बॉक्सेस among the dolls। Now what my mother is doing? She is keeping some place for furniture। फर्नीचर, घर के सामान के लिए मम्मी थोड़ा सा स्पेस रख देती है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो वो बजाते हैं, बाजा नहीं बजाते, कोई फ्लूट बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है ना, वैसे ही। समटाइम्स शी एड्स फ्रेश पीच ब्लॉसम्स। फ्रेश पीच ब्लॉसम्स मीन्स, फ्रेश पीच का ब्लॉसम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मम्मी कभी कभी फ्रेश फ्लावर्स जो रहते हैं ना, वो लाके रख देती थी। किसके पास? डॉल्स के पास। एंड केक्स ऑफ स्वीट्स इन द शेप ऑफ फ्रूट्स। नाउ केक्स इन स्वीट्स मीन्स मम्मी केक्स बनाती थी बहुत ही स्वीट्स। और कैसा था उन केक्स का शेप? फ्रूट का शेप का था। जैसे एप्पल का शेप हो गया, एप्पल के शेप का केक बना ली मम्मी ने, ग्रेप्स के शेप का केक बना ली। सो इन सेम दैट वे। These dolls are not meant for playing।
नाउ दिस डॉल्स आर नॉट मेंट फॉर प्लेइंग, मतलब ये डॉल्स खेलने के लिए नहीं बनी है. दे आर वेरी स्पेशल फॉर द जापानीज. नाउ दे आर वेरी स्पेशल फॉर जापानीज, मतलब ये डॉल्स उससे वो लोग खेलते नहीं हैं. ये डॉल्स जापानीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है. क्यों स्पेशल है? कम वी विल सी. आफ्टर द फेस्टिवल everything is carefully packed away until the next year when again they will be brought out. Now after the festival means डॉल्स का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद जापानीज क्या करते, डॉल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सेफली उनको पैक करके वापस रख देते. क्यों पैक करके रख देते? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब ये डॉल्स का फेस्टिवल आएगा तो फिर ये डॉल्स को वापस बॉक्स में से निकाला जाएगा. ओके. द मदर हैंड ओवर दिस डॉल्स टू हर डॉटर व्हेन शी इज मैरिड एंड इन हिज वे दिस डॉल्स आर passed on. Now mother will give this doll to daughter when she will get married. मतलब मम्मी अपनी ये डॉल अपनी बेटी को देगी जब वो मैरिज कर लेगी और मैरिज करके अपने घर चले जाएंगी. ओके. इन दिस वे दिस डॉल्स आर पास्ड ऑन. इसी तरीके से ये जो डॉल्स है उनके जापानी अपने अपने डॉल्स को आगे आगे पास ऑन करते. ओके. गॉट इट? इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन. मुझे लगता है आपको लेसन सब समझ में आ गया. ओके. सो यू विल रीड द लेसन्स डेली. दिस विल हेल्प यू इन योर रीडिंग. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. So here I end my lesson and I end my video also. So I'll see you in the next video with another lessons. Okay? I will send you the PDF of the notes. आपको notes का PDF बना के मैं send कर दूंगी. Okay my dear students, till that time stay safe, stay home, stay healthy. I'll see you in the next video in the next time. Okay? Bye.